Hello guys, welcome back to my channel. Today I am back with the NCERT exercises which were left of the chapter 3rd of human reproduction. So in this very video I would be covering all the remaining questions of the NCERT exercises. Let us start. The 8th question was define spermiogenesis and spermiation. So these both terms are referred to the male reproductive system. So first we will talk about spermiogenesis. Spermiogenesis is the final stage of development of spermatogenesis during which haploid spermatids mature into spermatozoa. Okay, when the spermatogenesis is going on, then spermatids are formed. When those haploid spermatids convert themselves into spermatozoa or sperms, means they develop tails, they differentiate into spermatozoa. That process is known as spermiogenesis. So you would have seen in the diagram that spermatids oval bodies are formed. When those oval bodies develop tails, they form spermatozoa or the sperm. So the process is spermiogenesis. Oval spermatids transform into tail-bearing spermatozoa or sperm and bury their heads into Sertoli cells. So why do they bury their heads in Sertoli cells? Because Sertoli cells are providing them nutrition. Okay, so I hope you are clear with the process of spermiogenesis. Now let us discuss about spermiation. Spermiation, spermatozoa or sperms which have buried their heads in Sertoli cells come out and are released into the lumen of the seminiferous tubules, from where they go to the rete testis, then to the vasa efferentia and then epididymis, which takes them to vasa deferens, which along with secretion of seminal vesicle are released into the ejaculatory duct inside the urethra and are released out during ejaculation via urethral meatus. So please read this by pausing the video once. So this is the whole process during which the sperms which have embedded their cells in the their heads in the Sertoli cells are released from the Sertoli cells. And where are they released? They are released into the lumen of the seminiferous tubule. Now from the lumen of the seminiferous tubule they go to rete testis. From rete testis they go to vasa efferentia. From there they are received by the epididymis. Epididymis takes them to the vasa deferens. From vasa deferens what happens? They form the ejaculatory duct inside the urethra along with the seminal vesicle. वासा डिफरेंशिया के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और उस इजैकुलेटरी डक्ट में आपकी सेमिनल वेसिकल भी ओपन होती है और ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के अंदर होती है. नाउ फ्रॉम द यूरेथ्रा दे आर रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन वाया द यूरेथ्रल meatus. Okay, so this is the opening called urethral meatus. So this is the whole process of spermiation. So the process of releasing of sperms from the seminiferous tubules or from the testis to the other organs and then finally outside the body during intercourse. Okay, that is the process of spermiation. So I hope you are clear about the spermiogenesis and spermiation. Now 9th question is draw a label diagram of a sperm. So this is the label diagram of the sperm. So you have to mention the acrosome, the neck, middle piece containing the mitochondria, tail and this head. So head consists of acrosome, nucleus containing chromosome material and the plasma membrane. So you have to make this diagram as to as this is given in your book. You can watch it there. Now what are the major components of seminal vesicle? जो seminal vesicle से seminal plasma. What are the major components of the seminal plasma? Okay, so seminal plasma is composed of sperms. Major component उसका sperms होते हैं. Then comes the mucus and secretion by the accessory ducts. It is rich in fructose, calcium, ascorbic acid and many other enzymes that protect it from oxidative stress. It is necessary for the vitality, nourishment and protection of sperms. तो seminal plasma जो होता है basically vitality, nourishment और protection of sperms के लिए ज़रूरी होता है. उसके अंदर sperms होते हैं, mucus होता है और secretion of accessory ducts होती हैं और वो रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, एस्कॉर्बिक एसिड में और जो दूसरे एंजाइम्स होते हैं जो उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं.
So this is all about the seminal plasma. Now, what are the major function of male accessory ducts and glands? So male accessory ducts में कौन कौन आते हैं? Retestus आता है, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. इनका काम बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम है इनका. Okay, so they are basically helping in transport of sperm and also produce some secretions which add on into the semen. Okay, तो ये कुछ secretions produce करते हैं जो कि आपकी seminal plasma में जाकर मिक्स होते हैं और सीमन को बनाते हैं. मीन्स सीमन इज composed of all these secretions that come from the accessory ducts. Now we'll talk about the male accessory glands, which are the bulbourethral, prostate and the seminal vesicle. All the accessory glands produce some secretions which form a travel medium for the sperms. Okay, तो ये क्या कर रहे हैं? travel medium बना रहे हैं sperms के लिए. These secretions lubricate reproductive organs and sperm, also provide nourishment, vitality and protection to the sperm. तो ये क्या कर रहे हैं? ये lubricate कर रहे हैं reproductive organs को. So basically इनका जो आपका bulbourethral gland होता है उसकी secretions क्या करती है? जो आपका external reproductive organ होता है मेल का, जिसको penis बोलते हैं, that is being lubricated by its secretion. And sperms also get lubrication from these secretions. Other than lubrication, they provide nourishment, vitality and protection to the sperms. So this is all about the accessory ducts and the glands. Now what is oogenesis? Give a brief account of oogenesis. तो हमने लास्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जो कि मेल गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है. यहाँ पे हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका फीमेल गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है. सो दिस जो इसका सबसे यूनिक फीचर है वो ये है कि oogenesis जो होता है, इट स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन द womb ऑफ द मदर वेयर द बेबी हैज़ मिलियंस ऑफ oogonia इन इट्स ओवरी. जब एक फीमेल बेबी अपने मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है, उसी टाइम में उसकी बॉडी के अंदर, उसकी ओवरीज के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ oogonia डेवलप होते हैं. आफ्टर दैट, आफ्टर द पार्चुरेशन, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, द oogonia आर नॉट डेवलप्ड. ओके, oogonia एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप होंगे, उसके बाद वो कभी भी डेवलप नहीं होते. सो अब ये जो oogonia है, दे आर अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. तो इनको क्या बोला जाता है? इनको प्राइमरी oocytes कहा जाता है और ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में अरेस्ट होते हैं. ओके, सो ये एक इनका फीचर हो गया. जब और उसके बाद प्राइमरी oocytes जो हैं वो कवर हो जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स से और क्या बनाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल. जब प्राइमरी oocyte ग्रैनुलोसा सेल से कवर्ड होगा, सो इट वुड बी मेकिंग अ प्राइमरी फॉलिकल. नाउ सेकेंडरी फॉलिकल कब बनेगा? जब ग्रैनुलोसा सेल की और लेयर्स ऐड ऑन हो जाएंगी और एक न्यू थीका बन जाएगी प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड. प्राइमरी फॉलिकल ऐसा का ऐसा ही रहेगा. सपोज दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल. पहले जो प्राइमरी फॉलिकल था उसमें सिर्फ एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल थी. अब उसके बाद उसके ऊपर और लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बन गए, थीका की एक लेयर डेवलप हो गई. तो ये प्राइमरी फॉलिकल तो एस टू एस प्राइमरी ही रहेगा. ठीक है, जब इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स और बन जाएंगी तो ये सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte होगा. ठीक है, ये प्राइमरी oocyte एस टू एस ऐसा का ऐसा ही रहेगा. नाउ टर्शरी फॉलिकल डेवलप होगा जब इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाएगी, जिसको एट्रम बोलते हैं, और जो थीका की लेयर बनी है वो आउटर एक्सटर्ना और इनर इंटरना में डिवाइड हो जाएगी. तब क्या कहलाया जाएगा इस पूरे स्ट्रक्चर को? टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल के इनसाइड भी आपके प्राइमरी फॉलिकल ही प्रेजेंट है. जब फीमेल प्यूबर्टी हिट करेगी तब प्राइमरी फॉलिकल, जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, वो अपनी पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी फॉलिकल और एक पोलर बॉडी बनाएगा. अब पहले ये देख लेते हैं. प्राइमरी oocyte ग्रोज inside the tertiary follicle and completes its first meiotic division and gets differentiated into secondary oocyte and a smaller polar body. ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया. अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म में पहले से ही प्रेजेंट थे, तो वो सेकेंडरी oocyte को मिल जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स. ओके, और अब क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte अपने आप को जोना पेलुसिडा से कवर कर लेगा. ओके, इट वुड कवर इटसेल्फ विद अ जोना पेलुसिडा लेयर. टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब क्या है? उसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है. टर्शरी फॉलिकल changes into mature Graafian follicle which ruptures to release the secondary oocyte as ovum
फ्रॉम द ओवरी वाया ओवुलेशन। ओके, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा एज ओवम। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी ओवम के फॉर्म में और एक सेकेंडरी बॉडी बन जाएगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस। फर्स्ट यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गई, उसके बाद डिवीजन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया, उस सेकेंडरी oocyte से ओवम फॉर्म हो गया। अब ओवम क्या होगा यहाँ पर, ओवम जो है आपकी मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में कैप्चर्ड रहता है, मेटाफेज 1 में ये अरेस्टेड रहता है जो ओवम रिलीज हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब यहाँ पर स्पर्म आएगा ओवम के पास में, उसके बाद इसकी एमियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी। ओके, ये मेटाफेज 1 का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, मेटाफेज 1 का जो अरेस्ट है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ये आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि द ओवम कंप्लीट्स इट्स म्यूटिक डिवीजन व्हेन इट रिसीव्स द स्पर्म। ठीक है, क्योंकि स्पर्म के आने पर ही उसको सेंट्रियोल मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओवम जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले मेटाफेज 1 स्टेज में अरेस्टेड है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म सेंट्रियोल्स लेकर आएगा, उसके बाद ओवम अपना पूरा का पूरा म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ oogenesis का पढ़ना है, तो oogenesis ओवुलेशन के बाद आपका ख़त्म हो जाता है, आपका फीमेल गैमीट रिलीज हो गया और oogenesis यहीं तक का प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का होगा। तो आप मेटाफेज स्टेज के बारे में लिख सकते हैं या ना लिख के, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप ओवम के टाइम तक ही oogenesis में एक्सप्लेन करेंगे, और ये चार्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अलॉन्ग विद दैट दिस सेक्शनल व्यू ऑफ द ओवरी इज ऑल्सो टू बी ड्रॉन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स है, ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। नाउ दिस इज द टर्शरी फॉलिकल जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है जिसको एट्रम बोला जाता है, और ये जो आपका एक राउंड है ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये आपका यहाँ पे सेकेंडरी ये आपका प्राइमरी oocyte है यहाँ पर, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जब म्यूटिक डिवीजन हो जाएगी उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, उसके बाद ये आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे ओवम की फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है, सो दिस इज द होल oogenesis स्टोरी। नाउ आपका 13 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू ओवरी। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ से आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज़ अ प्रॉपर ग्राफियन फॉलिकल जिसमें आपको कुछ लेयर्स दिखाई गई हैं, कोरोना रेडिएटा की, क्यूमुलस ओफोरस की दिखाई गई है, एट्रम जो कि आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, बेसल लैमिना दिखाया गया है, और ग्रैनुलोसा सेल्स दिखाई गई हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल किससे बनता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आपका मैच्योर टर्शरी फॉलिकल होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है और उसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होती है। सो दिस इज दी सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट। ओके, दिस इज दी सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट इनसाइड दी ग्राफियन फॉलिकल। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। नाउ नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको कुछ टर्म्स दी गई थी, उनके फंक्शन के बारे में आपको बताना है। पहला है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेजर फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which is important for the maintenance of the endometrium inside the uterus। यूट्रस की सबसे अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है या लेयर होती है उसको एंडोमीट्रियम बोलते हैं। एंडोमीट्रियम needs to be maintained so that the fertilized egg can be implanted in it and other events of pregnancy can proceed. Progesterone also inhibits the release of FSH, which is follicle stimulating hormone, and luteinizing hormone so as to avoid ovulation and promote implantation and further fertilization। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मेजर काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन। प्रोजेस्टेरॉन इसलिए सिक्रीट होता है जिससे कि जो यूट्रस की सबसे इनर मेम्ब्रेन है एंडोमीट्रियम वो मेंटेन रह सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है जिसके अंदर आपका एंडोमीट्रियम डिग्रेड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल होने पर वो दोबारा से बिल्डअप होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, विल डिस्कस इट इन अदर क्वेश्चन। उसके बाद एंडोमीट्रियम के बारे में बात करें तो एंडोमीट्रियम एक ग्लैंडुलर लेयर है, इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर होती है यूटरस की, इन विच द फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड एंड स्टार्ट्स द प्रेगनेंसी।
इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो जो इम्प्लांटेशन होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे वो आपका एंडोमेट्रियम के अंदर होगा. जो फर्टिलाइज एग होगा वो बरी हो जाएगा एंडोमेट्रियम में. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, अगर प्रेगनेंसी इनिशिएट नहीं होती है, तो एंडोमेट्रियम विल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. And then comes a third term which is acrosome. Acrosome anterior most cap like structure होता है एक sperm का. Okay, which is filled with hyaluronidase enzyme which dissolves or hydrolyzes the outermost layer of the egg in order to fertilize it. उसके अंदर ये एंजाइम होता है, इसका नेम आपको याद कर लेना है, hyaluronidase. Okay, so you should write this in your copy as this is not given in your NCERT. नाउ बात करते हैं स्पर्म टेल की. स्पर्म टेल का मेजर काम जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करना है स्पर्म को. और जो स्पर्म टेल है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सो ये 4 टर्म्स के आपके फंक्शन पूछे गए थे. और ये 5th टर्म इज़ द फिमरे. फिमरे इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब present close to the ovary and are responsible for catching the ova released during ovulation. तो जैसे ही ओवरी ओवुलेशन के टाइम पर अपना ओवम रिलीज करेगी, फिमरे उसको एकदम से कैच कर लेगी. ओवा विच इज रिसीव्ड बाय द फिमरे इज पास्ड इनसाइड द यूटरस बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया प्रेजेंट इनसाइड द फिमरे. तो फिमरे के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि बीट करते रहते हैं, और जैसे ही उसके पास ओवम आता है तो वो उस ओवम को आगे फॉरवर्ड करते हैं यूटरस के अंदर. और जैसे कि आपको पता होगा जो आपकी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा. तो वहाँ तक फिमरे उसको लेकर जाएगा जिससे कि फर्टिलाइजेशन इनिशिएट हो सके. और वो ले जाने का काम कैसे होगा? बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द फिमरे. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. So यहाँ androgens are produced by the Sertoli cell. This is a false statement because they are produced by the Leydig cells. Now spermatozoa gets nutrition from the Sertoli cell. This is a correct statement. Leydig cells are formed in the ovary. This is a very wrong statement as they are found in the testes. Leydig cells synthesize androgen. This is true. Oogenesis takes place in the corpus luteum. Very wrong. It takes place inside the ovary. Menstrual cycle ceases during pregnancy. True. Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. This is also true. Okay, this is not a reliable indicator. Now, what is menstrual cycle? What hormones regulate the menstrual cycle? So, menstrual cycle is the reproductive cycle in the female primates. It is cycle of events starting from one menstruation to the next, and it consists of 4 phases which are menstrual phase, follicular phase, ovulation phase and luteal phase. So you need to describe all the phases separately. So menstrual phase is 3 to 5 days cycle during which the menstrual flow occurs. Menstrual flow consists of broken endometrium lining of the uterus and its blood vessels. तो ये 2 चीज़ें होती हैं उसमें, blood और mucus भी आता है. Lack of menstruation is a sign of pregnancy, so it can be affected by other health issues like stress या lack of nutrition. इसकी वजह से भी आपका menstruation absent हो सकता है. It is not necessary that it is because of pregnancy. Now what happens in the follicular phase is that during this phase follicle matures. Primary follicle matures into the Graafian follicle. Endometrium regenerates through proliferation. Changes in the ovarian and pituitary hormones. Secretions of gonadotrophins which are luteinizing hormone and follicular stimulating hormones increase, and the increase of these gonadotrophins stimulate follicular development. Then the LH surge, which is luteinizing hormone surge, leads to the rupture of Graafian follicle which releases the ovum. This is the ovulation, and this occurs on the 14th day of the cycle. Okay. 28 डेज़ की आपकी पूरी कंप्लीट साइकिल होती है जिसमें ओवुलेशन आपका 14th डे पर होता है, और उस टाइम पर आपकी LH सर्ज कंटिन्यू होती है. ना ओवुलेशन अकर्स अराउंड द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन कम्स द ल्यूटियल फेज. ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, जिसका काम क्या होगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना. Endometrium is maintained for the implantation of the fertilized ovum. If there is no fertilization, the corpus luteum and endometrium will degenerate, marking a new menstrual cycle.
ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी और एंडोमेट्रियम दोनों के दोनों डिजेनरेट हो जाएंगे और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सो हार्मोन्स कौन से रेगुलेट कर रहे हैं, तो गोनाडोट्रोपिन के बारे में हमने पढ़ा था। FSH और LH इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज विच इनिशिएट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन्स। ठीक है, एक तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट ग्राफिन फॉलिकल का मैचुरेशन कंट्रोल करते हैं और रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन्स को भी वो कंट्रोल करते हैं। इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल FSH एंड LH बोथ अटेन पीक। ठीक है, LH सर्ज बोला जाता है जिसको, और वो क्या करते हैं, ओवुलेशन को इनिशिएट करते हैं, जिसमें जो सेकेंडरी oocyte है दैट इज बीइंग रिलीज बाय द रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम से किसका रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, वो उसको प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को इनिशिएट करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा, मेंटेन करेगा यूट्रस के अंदर, जिससे कि यूट्रस रेडी रहे इम्प्लांटेशन के लिए। सो द बॉडी इज प्रिपेयरिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस, ओके, और द जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो सारा का सारा सिस्टम जो भी आपकी प्रिपरेशन जो हुई है, it just degrades, it breaks down, and then a new cycle is being started with the new menstrual cycle. Within this cycle continues every 28 days. Okay, it keeps on repeating itself every 28 days till all the oogonia are finished. ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने oogonia आए थे वो धीरे धीरे करके जैसे ओल्ड एज आती जाएगी, अराउंड 50 years of age or 55 years of age, all those oogonia will get finished, and then this menstrual cycle will cease, and that is known as menopause. Now what is parturition? What hormones are involved in the induction of parturition? So parturition is the process of delivering fetus out of the female body. Complex neuroendocrine process induces parturition. fetal ejection reflex के दौरान क्या होता है, signals produce होते हैं by the fully grown fetus and the placenta. तो fetus और प्लासेंटा सिग्नल सेंड करेंगे, ठीक है, विच स्टिमुलेट माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूट्रस। सिग्नल्स कहाँ सेंड करेंगे, वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करेंगे। ब्रेन क्या करेगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट करेगा आपके यूट्रस के अंदर। ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इससे ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी के द्वारा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा बाय द मैटरनल पिट्यूटरी, मदर की पिट्यूटरी से। नाउ दिस ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स कॉजिंग स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन मसल्स पे ये एक्ट करके और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, स्टिमुलेटिंग मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो पहले ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उससे क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और ये रिपीट होता रहेगा। नाउ स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन ऑक्सीटोसिन एंड यूटेराइन वॉल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्टिमुलेटरी जो रिफ्लेक्स है ऑक्सीटोसिन के रिलीज में और यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन में कंटिन्यू होता रहेगा, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दिस रिफ्लेक्स एक्शन लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ फीटस थ्रू द बर्थ कैनाल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज और कॉन्ट्रैक्शंस का इंक्रीमेंट, ये तब तक होता रहेगा जब तक फीटस का एक्सपल्जर नहीं हो जाता थ्रू द बर्थ कैनाल, मतलब जब तक फीटस फीमेल की बॉडी से बाहर नहीं आ जाता। और जब वो आ जाता है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर पार्चुरेशन द प्लासेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जब आपका फीटस बाहर आ जाता है उसके बाद आपका जो प्लासेंटा है जिसमें फीटस था, वो भी जिससे फीटस प्रोटेक्टेड था, ठीक है, सारा फूड का सप्लाई एंड ऑल जो भी प्रोवाइड हो रहा था प्लासेंटा के थ्रू हो रहा था, वो भी इट ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल आफ्टर पार्चुरेशन। नाउ दिस इज द होल प्रोसेस। तो इसमें ऑक्सीटोसिन का आपका देख लिया, ऑक्सीटोसिन इसमें मेन हार्मोन है जो पूरा का पूरा आपका इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन को कर रहा है, ठीक है। और इसमें आपको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ना है और एक स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ना है। दीज आर टू मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपके पेपर में आता है तो आपको इसको इस तरह से राइट डाउन करना है। नाउ 19th क्वेश्चन इज, इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट?
तो ये आप इस आंसर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में इसको बताती हूँ। तो देखिए, आपका जो फीमेल होता है, फीमेल के अंदर और ये मेल होता है। सो दिस इज़ अ फीमेल एंड दिस इज़ अ मेल। सो इनके अंदर क्या होते हैं, 22 ऑटोजोम्स होते हैं जो कि सेम होते हैं। ऑटोजोम्स ये बिल्कुल सेम होते हैं दोनों में। ओके, उसके बाद क्या होता है, एक पेयर होता है, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, दिस इज क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स होता है। दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अ फीमेल। उसके बाद मेल के अंदर होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कि हर एक फीमेल और मेल के अंदर से एक एक आपका क्रोमोसोम आएगा। सपोज दिस इज एक्स और एक्स इन द फीमेल, दिस इज द मदर सपोज, एंड दिस इज द मेल विच इज द फादर। तो उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम एक्स और वाई है। तो जब एक जाइगोट बनेगा तो जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। तो जब जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा तो हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से सिर्फ एक एक क्रोमोसोम जाइगोट में जाएगा। मीन्स एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम सपोज फीमेल के पास है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल के पास है, तो उन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम जाइगोट में जाएगा। फीमेल में से एक क्रोमोसोम जाएगा, मेल में से एक क्रोमोसोम जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, एक्स और एक्स। तो अगर मेल के पास एक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई प्रेजेंट है, जिसमें से एक्स अगर चला जाता है फीमेल के क्रोमोसोम के साथ, तो ऑब्वियसली फीमेल ही बनेगा। अगर एक्स के साथ मेल के सेक्स क्रोमोसोम में से, सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में से वाई चला जाता है तो मेल प्रोड्यूस होगा, जाइगोट का सेक्स मेल होगा। तो मेजरली क्या होता है, मेल के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। मेल के क्रोमोसोम, सेक्स के क्रोमोसोम्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जाइगोट के अंदर कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, एक्स जाएगा या वाई जाएगा। और जाने की कोई प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, 50% दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक्स के जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, वाई के जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ चांस कि कौन सा क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन और फॉर द सेक्स ऑफ द जाइगोट। ठीक है, कमिंग बैक, यहाँ पे यही मैंने एक्सप्लेन किया गया है। तो इसलिए इट इज़ वेरी रॉन्ग टू ब्लेम वुमेन for giving birth to daughters. Okay, so because the credit goes to the male because of their genetic constitution, because of the sex chromosomes that they carry. So this is the answer of this question. You can explain it in your words. I have explained it very well in this very slide. You can take a screenshot or write down in your copy. Okay, moving on to the next question. How many eggs are released by a human ovary in a month? How many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to identical twins? Would your answer change if the twins born were fraternal? तो देखिए, एग्स जो होते हैं एक ही एग प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि ह्यूमन ओवरी में, सपोज दिस इज द ओवरी, आई एम जस्ट ड्राइंग अ डायग्राम। यहाँ पे एक ओवरी प्रेजेंट है और उसी तरह से यहाँ पे ये फिमरे हैं। ओके, यहाँ पे एक ओवरी प्रेजेंट है। तो एक मंथ पे, सपोज एक मंथ है, जनवरी है सपोज, जनवरी में ये ओवरी रिलीज करेगी एग, एक ही एग रिलीज होगा पर, और फरवरी में ये वाली ओवरी कर देगी। ठीक है, तो ऑल्टरनेट ओवरीज ऑल्टरनेट मंथ्स में एग्स को रिलीज करती हैं, पर हमेशा एक ही एग रिलीज होता है, ओनली वन। अब अगर हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस में, आइडेंटिकल ट्विंस के टाइम पर क्या होगा, एक ही एग रिलीज हुआ है, पर क्या हुआ है कि जब डिवीजन हो रहा है ब्लास्टोमियर का, उस टाइम पे जो ब्लास्टोमियर डिवाइड हुआ है वो दो सेपरेट ब्लास्टोमियर्स बन गए। सॉरी, जब डिवीजन होता है फर्टिलाइज जाइगोट का, तो हमने पढ़ा था जाइगोट स्टार्ट कर देता है डिवाइड करना एकदम से। तो जब डिवीजन हो रहा होता है तो जाइगोट क्या करता है, दो ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो जाते हैं उसके, और ये दो ब्लास्टोमियर्स सेपरेट इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं। एक ही एग है, सपोज ये एक जाइगोट है, एक ही जाइगोट है, ये जब डिवाइड होने लगा तो ये क्या करेगा, ये दो ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड हो गया डिवीजन के टाइम पे। जब ये दो ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड हो गया, ये एक इंडिविजुअल में डेवलप होगा, ये दूसरे इंडिविजुअल में डेवलप होगा, और ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। सो दीज आर आइडेंटिकल ट्विंस। अब अगर हम बात करें मैटरनल ट्विंस की,
तो 1 out of 2 ovaries releases eggs during ovulation alternatively every month. But in case of fraternal twins, both the ovaries release eggs at the same time, so 2 eggs reach the uterus, which are fertilized by 2 different sperms. वेरी रेयरली दिस थिंग हैपन्स जब दोनों की दोनों ओवरीज एक साथ अपने अपने एग्स को रिलीज कर दें. तो 2 एग्स जब पहुंचेंगे यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में जब 2 एग्स पहुंच जाएंगे और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्पर्म्स होंगे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, तो 2 स्पर्म्स उन दोनों अलग अलग एग्स को फर्टिलाइज कर देंगे, 2 अलग अलग स्पर्म्स, जिसकी वजह से फैटर्नल ट्विंस डेवलप हो जाएंगे. ठीक है. और जो ये डेवलप होंगे ये ट्विंस, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होगा एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनको नॉन आइडेंटिकल या फिर फैटर्नल ट्विंस बोला जाता है. ओके, मैटरनल लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग, इट इज फैटर्नल ट्विंस. ओके, सो दीज आर फैटर्नल ट्विंस. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन. तो आइडेंटिकल ट्विंस एक ही एग से डेवलप हो रहे हैं, और जो फैटर्नल ट्विंस हैं वो 2 एग से रिलीज हो रहे हैं और 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी रेयर केस. नाउ हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 puppies? सो डॉग्स बिलोंग टू पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज. ओके, तो डॉग्स जिस स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं उसको पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज़ बोलते हैं, जिसमें ओव्यूलेशन के टाइम पे एक से ज़्यादा ओवम रिलीज होते हैं. तो अगर 6 पपीज़ दिए हैं किसी भी फीमेल डॉग ने, ठीक है, इफ़ 6 पपीज़ आर born बाय अ फीमेल और गिवन बर्थ बाय अ फीमेल डॉग, तो उसका मतलब ये है कि 6 ओवा रिलीज हुए थे बाय द फीमेल ओवरी. ठीक है, 6 eggs were produced by the female ovary which resulted in it giving birth to 6 puppies. ओके, तो ये पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज़ के बारे में बताएंगे, और ये आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, हम लोग मोस्टली क्या आते हैं, हम लोग हमें बोल सकते हैं मोनोओव्यूलेटरी. ओके, क्योंकि हम, या फिर बाई ओव्यूलेटरी. ओके, आई विल जस्ट फाइंड द टर्म एंड आई विल मेंशन इन द कमेंट्स. ओके, सो ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो हम लोग मोस्टली एक ही एग रिलीज़ करते हैं हर मंथ, और फर्टिलाइजेशन टाइम में भी एक ही एग फर्टिलाइज होता है. इट इज़ वेरी रेयर केस विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो. So that's all for this video. I have completed all the questions of the NCERT exercises of human reproduction. I would be very soon starting the next chapter, and I would be starting the genetics portion now. So stay tuned to my channel. Don't forget to subscribe and share this video with your friends, and press the like button if you liked the video, and if you have any doubt you can ask me in the comment box. I would be really happy to clear your doubts, and if you need any other information regarding to these chapters, you can also ask me in the comment box. Okay, so subscribe, share and like this video, and thank you very much for watching.